हाय एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं नर्सिंग से कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विच फाइंडिंग वुड द नर्स कंसिडर एबनॉर्मल व्हेन परफॉर्मिंग अ फिजिकल असेसमेंट ऑन अ 6 month ओल्ड? कौन सी चीज़ यहाँ पे एबनॉर्मल लगेगा जब नर्स एक फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं एक 6 month ओल्ड बच्चे पे? पोस्टीरियर फॉन्टानेल इज ओपन। एंटीरियर फॉन्टानेल जो है वो यूजुअली क्लोज होता है बिटवीन 12 to 18 months। तो यस, दिस वुड गो डेफिनेटली। फिर भी हम लास्ट जो 3 ऑप्शंस है वो भी चेक कर लेते हैं। एंटीरियर फॉन्टानेल इज ओपन, जी नहीं। एंटीरियर फॉन्टानेल, हाँ, जो पोस्टीरियर फॉन्टानेल का जो पॉइंट था, posterior fontanelle should close between 6 to 8 weeks of age, इसलिए ये थोड़ा सा abnormal है। तो yes, this will be correct. And anterior fontanelle is open. Anterior fontanelle usually closes between 12 to 18 months, तो ये नहीं जाएगा। Beginning signs of tooth eruption. अम, देखिए, इन्फेंट का जो फर्स्ट टूथ इरप्ट है ना, वो होता है एट 6 months एज। सॉरी, 6 months ऑफ एज। सो यस, ये तो 6 months के अंदर है ना, तो ये भी नहीं जाएगा। एबल टू ट्रैक एंड फॉलो ऑब्जेक्ट्स, इन्फेंट शुड बी एबल टू ट्रैक ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, a mother requests that her child receive the varicella vaccine at the 9 month well child checkup. The nurse tells the mother that, nurse क्या बोलते हैं बच्चे के माँ को? पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि चिल्ड्रन हु आर वैक्सीनेटेड विल लाइकली टू डेवलप अ माइल्ड केस ऑफ द डिजीज। देखिए, it is possible for children to develop a mild rash after receiving the varicella vaccine. However, the varicella vaccine is not usually administered prior to 1 year of age. तो ये गलत हो गया। The vaccine cannot be given at that visit. Nurse should not give the vaccine. Okay, the varicella vaccine is not usually administered prior to 1 year of age unless they are extenuating the circumstances. तो ये सही है। Next, the vaccine will be administered after the physician examines the child. Varicella vaccine जो है, it is not usually administered prior to 1 year of age, तो ये गलत है। बूस्टर वैक्सीन जो है, that will be needed at 18 months of age. Recommendation जो है सेकेंड डोज का, वो एडमिनिस्टर किया जाएगा at 4 to 6 years of age. Okay, तो डेफिनेटली ये गलत है, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं बताएंगे नर्स बच्चे के माँ को अभी। ओके, नेक्स्ट, which should the nurse teach the parents is one of the most common causes of injury and death for a 9-month-old infant. फर्स्ट बोला गया है पॉइजनिंग। Poisoning is more common among toddlers and preschoolers who are ambulating. Second जो है वो है child abuse. Child abuse is not one of the leading causes of injury and death in children. Accidents are the most common cause of injury and death. Aspiration एक common cause of injury है and death cause है among children of this age. So these children often find these small objects lying on the floor and place them in their mouth. क्योंकि कोई भी चीज़ वो लोग मुंह में डाल देते हैं. Older siblings are often responsible for leaving the small objects around. तो ये हो सकता है common causes. डॉग बाइट्स उतने भी कॉमन या फिर लीडिंग कॉज नहीं है इंजरी या फिर डेथ इन चिल्ड्रन के लिए. नेक्स्ट है, an 8-day-old was administered to the hospital with vomiting and dehydration. The newborn's heart rate is 170, respiratory rate is 44, blood pressure is 85/52, and temperature is 99 Fahrenheit. What is the nurse's best response to the parents who ask if the vital signs are normal?
फर्स्ट पॉइंट जो है, द ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड बट द अदर वाइटल साइंस आर विद इन द नॉर्मल लिमिट्स. Normal systolic blood pressure for a child from birth to 1 month is 50 to 101. 50 to 101. तो एक नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बच्चे के लिए फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ इज 42 टू 64. ठीक है, तो ये नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट, द टेम्परेचर इज एलिवेटेड बट द अदर वाइटल साइंस आर विद इन द नॉर्मल लिमिट्स. तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो है फ्रॉम 96.6 फ़ारेनहाइट टू 100 फ़ारेनहाइट. दैट्स द नॉर्मल टेम्परेचर. तो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी रेट इज एलिवेटेड बट द अदर वाइटल साइंस आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स. तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है एक बच्चे के लिए फ्रॉम द बर्थ इज 1 मंथ टू like yes from 1 month it's 30 to 60. ठीक है, 30 to 60 तक है. तो रेस्पिरेटरी रेट ओके, तो ये भी नहीं जाएगा. द हार्ट रेट इज एलिवेटेड बट द अदर वाइटल साइंस आर विद इन द नॉर्मल लिमिट्स. नॉर्मल हार्ट रेट जो है एक बच्चे के लिए फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ इज 90 to 160. ठीक है, तो ये होगा 90 to 160. तो ये होगा. Okay, next question. The mother of an 11-month-old with iron deficiency anemia tells the nurse that her infant is currently taking iron and a multivitamin. Which statement made by the mother should be of concern to the nurse? I give the iron and multivitamin at the same time each morning. देखिए, it is always a good idea for the parents to administer the medications at the same time each day. तो ये तो वैसे तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं जा रहा है. ठीक है, आई गिव द आयरन एंड मल्टीविटामिन इन द मॉर्निंग 6 oz बॉटल. देखिए, medicines should never be mixed in a large amount of food or formula, because the parent cannot be sure that the child will take the entire feeding. So formula decreases the absorption of iron. ठीक है, तो ये एक कंसर्न की बात हो सकता है. नेक्स्ट जो है वो है, आई गिव द आयरन एंड मल्टीविटामिन 2 hours बिफोर आई फीड द मॉर्निंग बॉटल. Giving medications in a nipple is an acceptable method of administering the liquid oral medication to infants. तो ये वैसे तो सही है, लेकिन सेंटेंस के क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं जा रहा है. I give the iron and multivitamin in oral syringes towards the back of the cheek. एक oral syringe अच्छा method है. It's a good method of administering the oral medications. The syringe should be placed in the back side of the cheek. Small amounts of the medication should be given at the time. ये वैसे तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं जाएगा. ठीक है, तो नंबर 2 है करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, वीडियो के लिए बस इतना ही. तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट टीचर्स, देन यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस. अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी government job preparation you are doing, then you can join our classes for taking all the help. Live lectures, recorded lectures, portal access, doubt clearing sessions, study materials, mock test facilities, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ये सभी होगा यहाँ पे. तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार चेक कीजिए, सभी डिटेल्स दिया गया है हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग. कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट लिंक सभी मेंशन्ड है. सो येस, डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉल अस. अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरीज है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.